पार्ट क्या रहा आपके इसी में? आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज द गैदरिंग. कोई भी इवेंट अच्छा तभी होता है अगर आपके पास अच्छे लोग आए जो मिलें. ये इवेंट सिर्फ मेरे या राउंड टेबल इंडिया से या सिर्फ बादल जी के आने से नहीं होता. द बेस्ट पार्ट इज़ कि लुधियाना के जितने भी अच्छी इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं विद फैमिलीज आए. सो इट इज़ नॉट जस्ट कि आउट ऑफ कंपल्शन आए. विद फैमिलीज कोई आता है तो वो एज एन इंटरेस्ट आता है, एज अ पैशन आता है, वो सुनने आना चाहता है. तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो जब वो आंसर्स और क्वेश्चन हो रहे थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस थी. एवरीबडी वॉज लिसनिंग एंड इंग्रोस्ड इन दिस. नहीं पता बस जान से कम चल रहे हैं. सो व्हाट हैपेंड इज एज आई टोल्ड यू, स्वच्छ भारत मेड इन इंडिया स्मार्ट सिटी is when we thought Ludhiana has been taken to smart city. No, it's Rampanagar who's been taken to smart city, not Ludhiana. Not even built a single megawatt. They haven't even thought of it. And besides that, they shut 2 plants. Our problem is they have not increased generation. When we took over this government in 2007, we were producing 5,000 megawatts of power and a demand was 10,000 megawatts of power. तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो जब वो आंसर्स और क्वेश्चंस हो रहे थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस थी. एवरीबडी वाज लिसनिंग एंड इंग्रोस्ड इन दिस. सो दैट इज आई थिंक अ विक्ट्री फॉर दिस इवेंट. Congress will know, okay, Jharkhand नहीं बनाना, he was Hindu. Now इन्हों बनाना, इन्हों he was this. उन चन्नी ने बना के बना दो. Have you chosen? I personally feel, and everyone is sitting, let's not feel that we are a Kali Congress anything. My suggestion to you, whoever, look at the CM face, who's going to give you the CM face, just vote for the one who you feel is the best, who can deliver. इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिकॉज आए दिन हम सफ़र तो कर ही रहे हैं, चाहे वो पैंडमिक हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के चैलेंजेस हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो. तो ये विजन से शायद से ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी टू इंडिविजुअल वोटर्स वाइल दे डिसाइड इवेंचुअली कि कहाँ वोट करना चाहिए. बट ये क्लैरिटी ज़रूरी है. जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम. Smart city, people think that they're going to make Ludhiana smart. No. Smart city is they take one mahalla in a city to make it smart and they don't give a damn for the whole state. And what they've chosen is the best mahalla which is easiest to upgrade. What they'll do is they'll put a walking street, some this and that, and you spend 200 crores on it. Where people want sewerage, people want everything, they're not bothered. In Chandigarh, they have chosen the best sector, one sector, and they give a name for a smart city. That is the biggest fraud. So the smart city, initially, I was in the first delegation which we went to Barcelona. I was the deputy CM and the present vice president was the minister of housing when the smart city was launched. So I remember going with him and we were on the plane. Before that, the secretary department was also there. So I asked him, as a state's deputy CM, I was asked to go on a delegation to visit the Smart City Conference. I thought, I don't know what it means, Smart City Conference. Smart City is, what they feel is, I'm talking about Barcelona, where you're driving on your... Our problem is, they have not increased generation. When we took over this government in 2007, we were producing 5,000 megawatts of power and a demand was 10,000 megawatts of power. There was a 5,000 megawatt shortage
We used to that time buy power at 10 rupees, 11 rupees, 12 rupees to give you and sell it to you at 7 rupees or 5 rupees. But we used to buy it. So we said we have to be first self-sufficient. We built these power plants. And I want to make one thing clear, these power plants are not private plants. They are 100% government plants. Why? Investment is of the private guy. But the plant, these all things are, nobody asked me to do it. I used to travel at night, look at it, what has to be done, this has to do this, connect this with this, make this with this, and do it like that. That's what we do. So you need passionate people. You don't need, actually I'm a less of a politician. I'm not a politician at all. Because whatever is in my mind, I say it. So unfortunately, which has been, I have suffered a lot because of that also. Now you tell me, I've been talking too much. I think you should tell me what you want in your life. No, I think everybody is sitting and just focused now. These elections are going to be somebody who has a vision. No, that depends on you. Definitely. So you have to choose between Bhagwant Mann, if he can lead you, or Kejriwal. Production from 5,000 to 11,000 we were surplus. Now what happens? Every year 600 to 700 megawatts from the 5 years. Today, Congress will know, okay, Jharkhand ne banana, he was Hindu. Now I know he was this. Un Channi nu bana ke bana deo. Have you chosen? I personally feel, and everyone is sitting, let's not feel that we are a Kali Congress anything. My suggestion to you, whoever, look at the CM face, who's going to give you the CM face, just vote for the one who you feel is the best, who can deliver. No doubt. Here we are really impressed. So what happened is, as I told you, Swachh Bharat, Made in India, smart city, is when we thought Ludhiana has been taken to smart city. No. It's Rabanagar who's been taken to smart city, not Ludhiana. So this is exactly where Ginwar Sahib, ਨਾਲ ਆਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਨੇ ਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਔਰ NGOs ਵੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦ NGO ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं राउंड टेबल के जोड़े है आयुष जैन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या आज आपने बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मिस्टर सुखबीर सिंह बादल आए और आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी उनसे। सो हाउ इट आइडिया कम्स टू यू? सी बेसिकली आइडिया ये था कि राउंड टेबल इंडिया एक NGO है जो नॉन पॉलिटिकल NGO है, एंड वी आर इनटू एजुकेशन एंड हेल्थ। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, बट वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग इन पंजाब, हमने सोचा कि जितने भी हम ये पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग सुनते हैं, ये वन वे कम्युनिकेशन होती है। आप टीवी पे सुनते हो या बड़े पंडालों पे देखते हो, टू वे कम्युनिकेशन, क्वेश्चंस का काउंटर क्वेश्चन, उसके आंसर्स, ये सब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू गेट द रियल पिक्चर की विजन क्या है हमारे लीडर्स का। सो एक ये अपॉर्चुनिटी आई थी,
पिंदा जी ऑफ कोर्स हेल्प्ड अस, राउंड टेबल इंडिया पूरी टीम मिली. इट वाज वेरी क्लियर इट इज़ गोइंग टू बी अ नॉन पॉलिटिकल फंक्शन. इट इज़ गोइंग टू बी अ फंक्शन जिसके अंदर हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आंसर्स ले सकते हैं और काउंटर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जो कोई नाकामियां हैं या अच्छा काम किया उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं. सो इट वाज अ वेरी कैजुअल कॉन्वर्जेशन. जैसे हमने ब्रेकफास्ट विद बादल इसका नाम रखा था, इट इज़ एट अ नॉर्मल सेटअप. फैमिलीज आई हुई थी, लेडीज़ वर हेयर एज यू कैन सी. सो इट वाज अ वेरी कैजुअल सेटअप जहाँ आपको कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं था. इट वाज जस्ट अबाउट नोइंग अ पर्सन बेटर जो कुड बी द फ्यूचर लीडर ऑफ पंजाब. ओके. सो ये पूछना चाहेंगे, जैसे आपने ब्रेकफास्ट विद बादल रखा, सो इस बार फर्स्ट टाइम में ऐसा है कि और भी पार्टीज़ 6-7 पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती नज़र आ रही हैं अभी तक. सो क्या हम ये भी समझें कि बाकी पार्टीज़ को भी ऐसा मंच प्रोवाइड किया जाएगा? डेफिनेटली. राउंड टेबल इंडिया सेड वी वांट कि हर एक के थॉट्स जो हैं, लीडर्स हैं जितने भी, उन सब के थॉट्स हम जनता तक पहुंचा सके. सो वी हैव रीच्ड आउट टू एवरीवन. जो इंटरेस्टेड होंगे, जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स को ऐसे इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, वील बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट. ओके. तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? It was really an eye opener. You feel intimidated शुरू में कि you have such a big leader जिनका जो स्टैचर है वो इतना बड़ा है. बट एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय, जस्ट लाइक अस. हम बात कर रहे हैं नॉर्मली. सो इट वाज अ गुड कॉन्वर्जेशन. सबने अपने अपने सवाल पूछे, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूछा, उनके हॉबीज़, इंटरेस्ट, ऑल्सो उनका विजन अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़. आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिकॉज आए दिन हम सफ़र तो कर ही रहे हैं, चाहे वो पैंडमिक हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के चैलेंजेस हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो. तो ये विजन से शायद से ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी टू इंडिविजुअल वोटर्स वाइल दे डिसाइड इवेंचुअली कि कहाँ वोट करना चाहिए. बट ये क्लैरिटी ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन पहुँचनी ज़रूरी है. सर बेस्ट पार्ट क्या रहा आपके इस इवेंट का? आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ द गैदरिंग. कोई भी इवेंट अच्छा तभी होता है अगर आपके पास अच्छे लोग आए जो मिलें. ये इवेंट सिर्फ मेरे या राउंड टेबल इंडिया से या सिर्फ बादल जी के आने से नहीं होता. द बेस्ट पार्ट इज़ कि लुधियाना के जितने भी अच्छी इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं विद फैमिलीज़ आए. सो इट इज़ नॉट जस्ट कि आउट ऑफ कंपल्शन आए. विद फैमिलीज़ कोई आता है तो वो एज एन इंटरेस्ट आता है, एज अ पैशन आता है, वो सुनने आना चाहता है. तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो जब वो आंसर्स और क्वेश्चन हो रहे थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस थी. एवरीबडी वॉज लिसनिंग एंड इंग्रोस्ड इन दिस. सो दैट इज़ आई थिंक अ विक्ट्री फॉर दिस इवेंट. सर कुछ पीछे खुसफुसाहट रही है, आपका इवेंट बहुत अच्छा था, हमने भी देखा, पर लोगों में कुछ ऐसी बातें भी थी कि सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को क्वेश्चन पूछने दिया गया. वाई ऐसा कुछ? आई थिंक इट इज़ हमने तो माइक सबको ओपन किया हुआ था. एवरीबडी वॉज अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस. इनफैक्ट देयर वर 2 people जो माइक लेके घूम भी रहे थे. आई मे बी कोई किसी ने बोला हो कोई स्पेसिफिकली, बट या वी वर बाउंड बाय टाइम. यू नो ही इज़ अ बिजी मैन, सो मे बी अदरवाइज एवरीबडी वाज आस्किंग. यू कुड सी देयर वर लेडीज आस्किंग क्वेश्चंस, देयर वर जेंट्स, देयर वर इंडस्ट्रीज, ब्यूरोक्रेट्स, एवरीबडी वर आस्किंग क्वेश्चंस. ओके. बातचीत करते हैं, यहाँ पे फीमेल्स भी हैं, तो मैम आज की पॉलिटिक्स में फीमेल्स भी प्रॉपर उतना ही पार्टिसिपेट कर रही हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा अगर सोसाइटी में कंट्रीब्यूटर है वो फीमेल्स हैं. सो कैसा आपको फील हुआ आज के जिस प्रोग्राम से? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, बट देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस जो हम पूछना भी चाह रहे थे रिगार्डिंग विमेन सेफ्टी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ड्यू टू टाइम बाउंडेशन वी कुड नॉट आस्क. बट डेफिनेटली women are important to this entire scenario because they have a lot to bring to the table in terms of how do women travel in the city, how do women work in the city. So there are some questions which are left, but other than that the program was very good. Okay. So what do you want to say, मतलब जैसे एक फीमेल सेक्टर्स को भी उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, जैसे आपने तो किया, चलो आपकी तरफ से इवेंट था, आपकी टीम की तरफ से, लेकिन फीमेल सेक्टर वैसे भी अपफ्रंटली आगे आया और क्वेश्चन आंसर सेक्शन में इंटरेक्शन किया. सो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? They have to come to the main stage, because if they don't come to the stage, how will they be heard? One, and secondly they contribute to voting also, to the society also. So it was good that they were given a chance, and they must be given a chance too. So sir क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? I think just be aware, listen, don't go unheard. आप जब इलेक्शंस अभी पास आएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लेके वोट करें. अपने पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल इंपॉर्टेंट है, आपको क्या अफेक्ट करता है, किसकी पॉलिसी क्या अफेक्ट करती है. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स, फैमिलीज क्या बोलती है, नहीं बोलती है, आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन, बट डेफिनेटली अवेयरनेस इज़ द की टू अ गुड लीडर. थैंक यू सर. थैंक यू. सो दोस्तों ये ਸੀਗੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ
ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿਦ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿਦ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਣਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।